Think like UPSC. Today we'll study ethics basically in public administration, how these values are relevant in administrating. So basic thing is here code of morality in civil services. Basically, it's a professional code of morality in civil services. So here we will try to decode it, like how this authoritarianism, bureaucratic and non-democratic elements are responsible here in shaping it, and the in context of the Indian administration, like is a model on a British administration or corollary to that is reflection of British administrative ethics and Indian administrative standard. And different scholars on administrative ethics, what they said, like PR Dhuvanshi, he said that in India, though there is no ethical code of public administrations, there are what are called the government servant conduct rule, and these rules lay down what constitutes a misconduct for the public servant, and it is apparently implied that such misconduct which is not permitted is also unethical conduct. And according to Chester Bernard, it's like governance by belief or feeling of what is right or wrong, regardless of self-interest or immediate consequences of a decision to do or not to do specified things under particular condition. And according to Gellenstahl, that's the problem of ethical conduct of public official arise by virtue of the power and influence that he commands and the commitment that he undertake of loyal and disinterested services to the public. So here morality and administration cannot be separated. He basically here thought, according to Paul H. Appleby, he said in his book Morality and Administration in Democratic Government, he said it is not merely a bigger government that ultimately matters. What is significant is that morality and in administration alone could ensure better government. One would not doubt that morality in administration is sustained by what? By patience, honesty, loyalty, cheerfulness, and courtesy, and like traits. These kind of things. So we have to understand how this is relevant in our public administration, what are its core values, and what kind of examples we can quote it. Like every time we can quote him, this Armstrong Payne, like his integrity, his work ethics, his ethical governance, and his corruption-free mind, objective, and so we can quote him. So, and we can quote these all keywords also, like karma. What is karma? Karma is basically knowledge, countable, and responsive, modern, and agile. So basically here is Mission Karma Yogi platform we can quote here. Next is your this is IICEO. This is a keyword: integrity, impartiality, commitment, empathy, and objectivity. And then our Nolan Committee. Nolan Committee said that basically it's like a standard. It set a standard for a public life, like in United Kingdom, government advice, and then it came in 1994. So it gave us 7 principles of public life. What was that? Earlier we have studied selfness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, leadership. So we can quote here, like in our emotional intelligence, we can say that dedication, empathy and compassion, and tolerance. These are basically they resolve around amicably, and staff remains committed to the work. So here I have given you this ethics in public administration, like what is basically, here it is integrity, conduction, role hai with honesty, integrity from the loyalty, that is your adherence to the moral values, like E. Sridharan's leadership in Delhi Metro. Work culture mein innovation, teamwork, enhances what? Efficiency and productivity. Next is your ethical governance mein, what does the term work culture imply? That it defines it. Importance, efficiency, enhancement, conductivity, motivation, basically rule of law, ऑफ ट्रांसपेरेंसी एग्जाम्पल हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, हमने डाला इसमें करप्शन फ्री गवर्नेंस चाहिए हमें, कॉमनवेल्थ स्कैम हमने एग्जाम्पल दे दिया, मीन्स में क्वेश्चन भी पूछा 2023 में, तो इसमें हमने नेक्स्ट में बोल दिया रूल ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी आर द मेजर कॉजेज, बेसिकली इट इज द नीड ऑफ एन आर. करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने डाला कि करप्शन एंड मिसयूज ऑफ प्राइवेट गेन फॉर समवंस प्राइवेट गेन, लाइक जो अभी रिसेंट का करप्शन केस था उसको हम डाल सकते हैं. करप्शन और क्यों होता है करप्शन, लाइक वीक इंस्टीट्यूशंस है, मोनोपोलीज चलती हैं, लॉ रिम्यूनरेशन है, और इसमें हम मीन्स में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा 2020 में, यहाँ भी पूछा था क्वेश्चन. और इसके बाद में हम व्हाट डज द वर्ड ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अगेन 2015. सो द क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड द कीवर्ड्स. सो try to decode these keywords, write down anywhere in your notebook or make your digital notes, but keep revising these all key terms. What does objectivity means? What does integrity means? What does the work culture implies? And what kind of work culture a civil servant needs to adhere? Then ethical governance, then ethical dilemma in public administration. What kind of ethical dilemma he faces? And source of ethical guidance क्या है? Accountability versus responsibility का what is the difference between it? Ethics in internal relations में किस तरह से? Framework of ethical decision making में how he would able to frame it. Next, Nolan Committee we have discussed. Now this is like next let's see the questions. What do you understand by term public servant? सीधा पूछा क्वेश्चन इसने यहाँ पर. What does the term public administration reflect on the expected role and responsibilities of a public servant in democracy? A public servant होता क्या, define करेंगे. Public servant is an individual employed by the government to serve society, guided by the constitution values like justice, equality, integrity. term डाली हमने तीनों. उसके बाद हमने बोला their accountability is not just a superior but to the citizens and to the nation.
रूल डालेंगे, सर्विस डिलीवरी, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज इफेक्टिवली, लाइक राइट टू एजुकेशन, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, एग्जांपल डाल दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट हम बोलेंगे न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्टिंग विदाउट बायस। सपोज एन आई यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, एन आई एस ऑफिसर पोस्टेड इनटू सम इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड ही गेव द टेंडर टू द without doing any biasness, he gave the tender, issued a tender to the eligible company. Next, ethical governance में हम डालेंगे acting with integrity, like when there is a he even have an IS officer is posted in some sort of district, एग्जाम्पल डालो केस बेस में, केस बेस की तरह से एग्जाम्पल डालो, और वो वहीं पे कहीं पोस्टेड है एंड देन ही हैज अ like opportunity to do corruption, but his integrity, his acting, his ethics, it comes in the middle of a way, so he denies it and he doesn't do that corrupt activities. He is not involved in responsiveness, solving citizens' grievances efficient, like there's a water scarcity in a particular district and officer posted there, so he is taking care of this issue wholeheartedly because he felt, या फिर Armstrong Painful कोड करो यहाँ पे, तो easily you have given 4 points दिए आपने, 4 point के साथ में you have given what, you have given examples. Next आप डालो IS, ये देखो सेम ही चीज है, रोड इन मणिपुर without government fund showing service and initiative. नेक्स्ट हमने एक एग्जाम्पल और डाला, ये 2023 के ऑफिसर है, वायरल ऑनेस्टी पोस्ट अबाउट रिफ्यूजिंग लग्जरी गिफ्ट्स ड्यूरिंग अ ट्रांसफर, मॉडल ऑफ इंटीग्रिटी एंड सेल्फनेसनेस. कंक्लूजन करेंगे हम, पब्लिक सर्वेंट्स आर ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक सर्वेंट क्या है? ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड देयर एथिकल बिहेवियर बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. इनके एथिकल बिहेवियर की वजह से ही ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता है और इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. लोगों में ओपननेस आ जाती है, लोग स्टार्ट कर देते हैं लाइक ट्रस्ट करना. हम इसको डायग्राम की हेल्प से बोलेंगे, नॉर्मल कमेटी के 7 डायग्राम वो वाला भी डाल सकते हैं यहाँ पर, और हम अपनी तरफ से इनोवेट करके ये वाला भी डाल सकते हैं कि लाइक पब्लिक सर्वेंट इंपार्शियलिटी कर है, उसमें इंटीग्रिटी है, एफिशिएंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, या फिर नॉर्मल कमेटी का बना के बीच में 7 उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो डाल दिया हमने, 7 प्रिंसिपल्स हैं उनके, तो वो 7 प्रिंसिपल हमने पूरे कोड कर दिए. दिस इज हाउ आंसर इज वेरी एनरिचड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स, सेम टर्म से पूछा है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट. सबसे पहले बताएंगे कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है क्या. कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक आउटलाइन ऑफ अ जनरल वैल्यू एंड अ मॉरल वैल्यू, व्हाइल अ कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड्स क्या करता है? स्पेसिफिक रूल्स एंड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन. हमने इसमें बताया एथिक्स इक्वल टू आइडियल्स, कंडक्ट इक्वल टू कंप्लायंस. तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ब्रॉड है, आइडियलिस्टिक है, एग्जांपल डालेंगे इसमें इंटीग्रिटी एंड कंपैशन. कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? स्पेसिफिक रूल है ये, दैट इज एग्जांपल नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल. गवर्नमेंट हैज इशूड अ गवर्नमेंट व्हीकल टू एवरी IAS ऑफिसर, बट मेजॉरिटी ऑफ द IAS ऑफिसर नाउअडेज आर नॉट यूजिंग दोज ऑल गवर्नमेंट व्हीकल फॉर देयर ओन पर्सनल यूज. सो इस तरह से हम इसको कोड करेंगे. एग्जांपल डालेंगे सिविल सर्वेंट रिफ्यूजिंग अ ब्राइब्स, एथिक्स है इसके, एंड रिपोर्टिंग अ ब्राइब क्या है? आपका कंडक्ट है. तो कोड ऑफ एथिक क्या काफी ब्रॉडर टर्म है, आइडियलिस्टिक टर्म है. वहीं आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? दैट इज योर स्पेसिफिक रूल, नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रूल. तो आपने एग्जांपल्स डालो, कोड करो और उनको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे अच्छे से, एंड देन कंक्लूजन करो किस तरह से अ सिविल सर्वेंट मस्ट एम्बॉडी बोथ द स्पिरिट ऑफ एथिक्स एज वेल एज द लेटर ऑफ कंडक्ट ऑफ गवर्नेंस. तो हम इसमें बोलेंगे एथिकल वैल्यूज है, कोड ऑफ कंडक्ट क्यों होनी चाहिए, एंड कोड ऑफ एथिक्स क्यों होनी चाहिए, एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्यों होना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसे, व्हाई हाउ पूरा एक्सप्लेन करो. दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2014 का, दैट इज व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी वाई इज अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक सर्विस. पब्लिक सर्विस में अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है, एंड सजेस्ट अ मेजर टू एनहेंस इट. क्योंकि पब्लिक सर्विस में अभी की डेट में अकाउंटेबिलिटी क्या है, दैट्स क्वाइट डाइसी. तो इसमें सजेस्ट मेजर पूछा है यूपीएससी ने, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स क्या करती है, सिविल सर्वेंट आर आंसरेबल टू देयर एक्शन एंड विच एनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस. हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड सिटीजन ट्रस्ट. अभी नहीं को आगे एक्सप्लेन कर सकते हो क्लियरली. टर्म आपके पास में, अब मेजर्स क्या है हमारे पास में, सोशल ऑडिट, मनरेगा, कैग ऑडिट, RTI एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्पैरो. तो हम इसमें एग्जांपल डालेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जैसे मॉरल ऑब्लिगेशन है, जिसमें किसने लिया था एग्जांपल, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक हमने एथिक्स में पढ़े हैं इनको हमने मॉरल ऑब्लिगेशन में पढ़ा है. लाल बहादुर शास्त्री, ही रिजाइन फ्रॉम आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट एंड ही टुक that I am the one, as a railway minister, I am the one who should be accountable for this thing. So his ethics didn't allow him to go beyond that. So this is why he resigned. So his accountability nature we can quote here. This him in every example, everywhere, wherever the moral obligation is coming, wherever the accountability concept is coming, you can quote him. Then जन लोकपाल इंस्टीट्यूशनल एग्जांपल हम डाल सकते हैं. फिर हम क्या ऑडिट में हमने क्या डाला, 2G स्पेक्ट्रम में इरेगुलरिटीज थी, एंश्योरिंग क्या करी थी, अकाउंटेबिलिटीज करी थी. तो हमने कंक्लूजन में करेंगे, कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इज अ बैकबोन. अकाउंटेबिलिटी क्या है? बैकबोन ऑफ व्हाट, ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. एंड एंश्योर क्या करती है, पब्लिक सर्वेंट एक्ट एज एन कस्टोडियन ऑफ अ पब्लिक ट्रस्ट. इनपुट हमारे क्या हो गए, प्रोसेस किया, आउटपुट निकला. इनपुट में हमने RTI है, मॉनिटरिंग करा, ऑडिट कर दिया. दीज आर सब कंपोनेंट्स. हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको भी यहाँ बना दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछता है कि पब्लिक सर्वेंट आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी इन डिसीजन मेकिंग. सेम नॉर्मल कमेटी के सेम 7 कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, टर्म सेम पूछी है, बस व्हाट चेंज कर दिया, पब्लिक सर्वेंट सेम ही चीज है. तो आप बोलोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कमेटी, और यू कैन गिव इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट इन क्लिप्स. ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी आर फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस, वैल्यूज फॉर अ सिविल सर्वेंट और फॉर अ ब्यूरोक्रेट. ठीक है, दे एंश्योर डिसीजंस आर टेकन ऑन मेरिट विदाउट बायस और प्रेजुडाइज. Important. Why these are important? Why he should take in this way? Because it ensures fairness and justice, avoids politicization, promotes trust and credibility. Diagram बनाएंगे, integrity, objectivity, empathy, neutrality, credibility, rule of law. Example, election commission officer conducting a poll neutrality. Example यहाँ next example डालेंगे, अशोक खेमकाज
रिपीटेड ट्रांसफर रिफ्लेक्ट्स ऑब्जेक्टिविटी डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर। कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से कि न्यूट्रलिटी सेफगार्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट ओवर अ प्राइवेट और अ पॉलिटिकल एजेंडास। तो हमारे पास पॉइंटर्स हैं, हम इन पॉइंटर्स को और एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज हाउ विल एनहांस आवर आंसर। आपको एग्जाम हॉल में अपनी मतलब इसी चीज पे फोकस करना है कि क्या क्या पॉइंटर आपको डालें। अगर आपको पॉइंटर्स पता है तो उनको इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज probity in public life is essential for good governance and elucidate पूछा है 2021 में पूछा है। probity refers to a strong moral principle like honesty and uprightness in public life. It is cornerstone of what? Of ethical governance. हम इसमें बोलेंगे accountability है, transparency, efficiency है। probity क्या है? That is integrity. Importance of in governance किस तरह से है? Enhance public trust, वही same चीज। Prevent corruption, promotes rule based decision making। एग्जाम्पल डालेंगे E. Sridharan's leadership in Delhi Metro is an example of probity in a large scale public project. कंक्लूजन में हम कर सकते हैं probity promotes ethical decision making and it's vital for sustainable and inclusive governance। तो यहाँ पे हम उनको भी डाल सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग पेन को, और उनको भी यहाँ कोट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं उतने ही कोट करो, एंड दिस इज हाउ यू आर एनरिचिंग योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सिविल सर्वेंट। ये पूछ रहा है, बोल रहा है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, मस्ट बी बैलेंस्ड विद ट्रांसपेरेंसी, टर्म बोली अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिफाई करेंगे। हम इन टर्म के इर्द गिर्द घूमेंगे। कैसे? डिस्क्रिशन गिव्स क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है किसमें? डिसीजन मेकिंग में। हाउएवर विदाउट चेक्स इट रिस्क आर्बिट्रेरीनेस एंड करप्शन। वाई बैलेंस is needed? Prevent abuse of power, encourage fair governance, build citizen trust। इन्हीं को हम वेन डायग्राम में कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट ऑफ लैंड लाइसेंस इन पास लेड टू स्कैम्स, आदर्स हाउसिंग स्कैम, और हम डीडीए वाला डाल सकते हैं। एग्जाम्पल डाल सकते हैं डीडीए में, लाइक करप्शन कोट कर सकते हैं इजिली। कंक्लूजन, डिस्क्रिशन मस्ट बी गाइडेड बाय, किस तरह से कर सकते हैं? एथिकल वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल चेक्स टू पब्लिक सर्वेंट टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बैठे हो ना आप, तो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगे हम इजीली। किस तरह से? कंक्लूजन में वही डालेंगे। नेक्स्ट हम बोलेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013 में आया था, और ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, 2024 में। वेट अ सेकंड, सॉरी, सेम 2024 में रिपीटेड है, बट इट वाज अगेन आस्क्ड ऑन इन 2013 में। पब्लिक सर्वेंट रिफ्लेक्ट्स, सेम चीज पूछी है, वही चीज हमने आगे अप्लाई करी है। रिफ्लेक्ट करने को बोला था यहाँ पूछा था रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी पब्लिक सर्वेंट इन डेमोक्रेसी। सेम वे में लिख सकते हैं हम इसको भी। द पब्लिक सर्वेंट इज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय गवर्नमेंट टू सर्व सोसाइटी, सेम ही दिखा हमने। ऑब्जेक्टिविटी बता दिया, पोर्टल्स बता दिए, एग्जांपल बता दिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोला, एग्जांपल हैंडलिंग पोर्टल लॉफुली, प्रोटेस्ट लॉफुली, सॉरी नॉट पोर्टल, हैंडलिंग प्रोटेस्ट लॉफुली, एग्जांपल ग्रास रूट हेल्थ सर्विसेज डाली हमने रिस्पांसिवनेस में। फिर हमने एग्जांपल डाल दिया और वेन डायग्राम भी इंक्लूड कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स 2015 में, वापस सेम, दोनों का मतलब क्या है एक्सप्लेन किया। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, व्हाई इज अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक सर्विस, हम कर चुके हैं इसको, ये भी कर लिया हमने। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन 2021 प्रॉपर्टी, ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है, इसको भी सेम। नाउ एडमिस, अब हम कुछ की टर्म्स पढ़ लेते हैं, सो दैट अगर किसी भी की टर्म पे हमसे क्वेश्चन पूछता है तो वी विल बी एबल टू आंसर इट। सबसे पहले क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में क्या क्या चाहिए? प्रोफेशनल एथिक्स इन सिविल सर्विस, मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड रेगुलेट कंडक्ट, गोज बियॉन्ड रूल फॉलोइंग। इन इंडिया कंडक्ट रूल एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ यूनिफाइड कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट हमने कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा था, सेम चीज, हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रॉड है, सब्जेक्टिव है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मिनिमल बिहेवियर स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, उसकी अपनी मर्जी पे ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये सब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंस ऑफ, जब तक उससे कोई पूछ नहीं रहा है तो ही वोंट से, व्हेन समवन इज आस्किंग ही इज रिप्लाइंग दैट हाँ यहाँ ये हो रहा है, ये चीज़ गलत हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में क्या है? प्रिवेंट आर्बिट्रीनेस, बिल्ड ट्रस्ट। इतनी चीज़ें पता है तो आप इजीली आंसर को फ्रेम कर सकते हो। व्यूज ऑफ स्कॉलर हमने पढ़े थे एथिक्स में, बिलीफ इन राइट रॉन्ग, नॉट सेल्फ इंटरेस्टेड। ग्लेन सेथल बोलते हैं एथिक्स इंश्योर्स पब्लिक सर्विस ओवर पावर। ये बोलते हैं पॉल morality plus administration equal to better government। PR दुभाषी he says the conduct rule in India guide behavior। नॉलन कमेटी के प्रिंसिपल्स डाल दिए हमने सारे 7, और एथिकल कंसर्न्स 7 प्रिंसिपल्स हो गए हमारे। एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमा इन गवर्नेंस कैसे? लॉ वर्सेस कंपैशन, ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी, जीडीपी वर्सेस एनवायरनमेंट, ये हमने एथिकल कंसर्न्स डाल दिए। फिर नेक्स्ट हमने बोला एथिकल डिलेमास इन प्राइवेट सेक्टर कैसे? CSR वर्सेस बिजनेस इंटरेस्ट, जेंडर बायस, प्रोडक्ट सेफ्टी, डेटा प्राइवेसी। फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग में हमने डाला रिकॉग्नाइज, इवैल्यूएट फैक्ट्स, स्टेक होल्डर्स, अप्लाई अप्रोच, वर्च्यू एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, कांतियन एथिक्स, गांधीजीज तालिस्मान्स। सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइड में हमने डाला लॉ, रूल्स, कंसेंस, सिचुएशनल एथिक्स। नेक्स्ट दिस इज हाउ वी हैव वाइंड अप द होल टॉपिक was so even the UPSC has asked in 2014 what does the ethics seek to promote in human life and why is it all more important in public administration। तो हम इसमें लिख सकते हैं to check arbitrary activities, importance बताएंगे, importance of public ethics में कैसे, the following points किस तरह से बोलेंगे, सिंपल, these are the points required। तो हम बोल सकते हैं to promote a cultural administration, पहला हमने बोला कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए, एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट या
सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट हो गया, फिर हमारा लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी स्ट्रेंथन करने के लिए, फिर हम बोल सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग एज पर द सेकंड एआरसी रिपोर्ट, लॉ बाय नेचर कैन नॉट बी कंप्लीट, लॉ बाय नेचर कैन नॉट बी कंप्लीट एंड कोड ऑफ एथिक्स एज्यूम्स मोर इंपॉर्टेंस इन सिचुएशन वेयर लॉ इज साइलेंट एंड नॉट एप्लीकेबल। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि टू प्रमोट कल्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल गुड्स एंड टू कल्टिवेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड एक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट एंड रिमूव अनडिजायरेबल ट्रेट्स इन सिविल सर्वेंट। तो इस तरह से हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हमें ना टिप्स पे होना चाहिए, क्या चीज टिप्स पे होनी चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज याद रखो, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, हाईएस्ट एथिकल वैल्यू है। कैसी है? इट इज एन हाईएस्ट एथिकल वैल्यू, कोड ऑफ एथिक्स। वेट अ सेकंड, कहां है कोड ऑफ एथिक्स? इट्स हियर, दिस। इस पे कई बार प्रीवियस ईयर में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से इसको याद करो कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। मीनिंग होती है कोड ऑफ एथिक्स की, कोड ऑफ एथिक्स आर द हाईएस्ट, कैसे, बहुत ही हाईएस्ट लेवल के एथिकल स्टैंडर्ड है जो कि एक सिविल सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले। एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? दिस इज लाइक कंडक्ट आर मिनिमम कंडक्ट क्या है, एक तरह के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर है एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट। नेचर दोनों का कैसा होता है? कोड ऑफ एथिक्स का नेचर जनरल है, इसका नेचर कैसा है? जनरल है, और इस वाले का कैसा है? स्पेसिफिक है। ठीक है। नेक्स्ट स्कोप क्या है? इसका वाइड है, सब्जेक्टिव है। इसका क्या है? कंप्लायंस एंड रूल है, नॉट बेसिकली नैरो ऑब्जेक्टिव है। डिसीजन मेकिंग कैसी है? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, गवर्न कौन करता है? डिसीजन लेने पे गवर्न होते हैं हम यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स में। बट इन दिस प्लेस कोड ऑफ कंडक्ट में हम क्या एक्शन टेकिंग है, हम एक्शन लेनी पड़ती है। और ये होता है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल को फोकस करता है, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल को कोड ऑफ एथिक्स में। वही हमारा कोड ऑफ कंडक्ट इसको कंप्लायंस एंड रूल्स को फोकस करता है। एनफोर्समेंट हम कैसे देखेंगे? सिंस दे आर जनरल, हम कोड ऑफ एथिक्स में बोलेंगे सिंस दे आर जनरल एंड ब्रॉडली worded, they are difficult to enforce and their violation difficult to punish। तो इनका जो violation होता है they are difficult to punish। वहीं whereas when we talk about code of conduct, since they are narrow, क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्पेस, छोटा टर्म है, narrow है एंड एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन देता है, तो स्पेसिफिकली worded their violation can be punished, जैसे कि करप्शन वगैरह, इनके violation can be punished। लाइक स्टेटस इन इंडिया कैसे है? स्टेटस इंडिया में कैसे है? there is no code of ethics, यहाँ पे कोई भी कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है फॉर अ सिविल सर्वेंट इन इंडिया, ऑल्दो सच कोड एग्जिस्ट इन अदर कंट्रीज। कंपेयर कर दो। नेक्स्ट हम कोड ऑफ कंडक्ट में बोलेंगे इन इंडिया वी हैव सेवरल कंडक्ट रूल, बहुत अलग अलग डिफरेंट कंडक्ट रूल है, किसी के लिए डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट। लाइक विच प्रोवाइड, उसमें फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं फॉर इंस्टेंस इन ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1954, ऐसी तरह से मेडिकल फील्ड में अलग है, लॉ की फील्ड में अलग है, तो एवरीवेयर देयर इज अ डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस पे 2018 में क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बिकॉज यू नो नाउ व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स एंड व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, यू नो द मीनिंग, यू नो द इट्स स्टेटस इन इंडिया, एनफोर्समेंट की पता है आपको, नेचर पता है, स्कोप पता है, गवर्नेंस में किस तरह से हेल्प करता है, फोकस्ड है नहीं है, यू कैन इजीली नाउ राइट इट डाउन। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें बोला था 2016 का क्वेश्चन है ये, डिस्कस द पब्लिक सर्विस कोड एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एआरसी। तो हम ये क्वेश्चन 2016 का है, इसमें हम बोलेंगे पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट कोड आर कोड्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक सर्वेंट्स द गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर, गवर्नमेंट प्रिपेयर करी है फॉर व्हाट? फॉर पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट कोड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे वो बनाती है? पब्लिक सर्विस इज एस्टैब्लिश्ड एज अ प्रोफेशनल मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गुड गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड इंसेंटिव्स के बेसिस पे टू अचीव मेंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड एक्सीलेंस। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं पॉलिसीज आर एंड स्ट्रक्चर आर प्रमोटेड, पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर टू प्रमोट किसके लिए? टू प्रमोट द विजिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कीपिंग इन द व्यू ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं जैसे कि पब्लिक सर्वेंट शैल बी अकाउंटेबल for their decisions or the decision making process in implementing of the management of code। जिसमें हम एग्जांपल डाल सकते हैं कि कुंभ मेला वाला, रिसेंट वाला। The interface between the political execution and the public service based on the principle of neutrality, professional excellence and integrity, इसके बेसिस पे। तो हम इस तरह से इसमें सारे पांचों पॉइंटर्स डालेंगे, डिफाइन करेंगे, वे फॉरवर्ड देंगे। मिशन कर्मयोगी बोल सकते हैं इसमें, जिसमें आई गोट कर्मयोगी द मिशन विल बी डिलीवर टू इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, और ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल इसमें हो गया। फिर हम कोऑर्डिनेट यूनिट कर सकते हैं इसमें, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमास जो गवर्नमेंट फेस कर एज अ पब्लिक सर्वेंट आप फेस करते हैं, मॉरल एजेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच वन और टू और मोर एक्शन। तो इस तरह से हम इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी इज व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, केयर एंड डिलिजेंस, कर्टेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, दीज आर बेसिकली पब्लिक सर्विस की वैल्यू है, की टर्म्स हैं, इनको हम बिफोर में डाल सकते हैं। एंश्योर्स इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। इस तरह से क्या है? अवॉइड मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, फंक्शंस विल बी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग पब्लिक, बेसिकली फंक्शन शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग पब्लिक। So rest all questions we have covered. What is meant by conflict of interest? Illustrate example से हमने अच्छे से conflict of interest देख सकते हैं, easily बता सकते हैं। Law versus the compassion, like conflict of interest में according to transparency and international conflict, किसके जरिए? according to transparency and international conflict of interest में आकर when a government official has a two competing interest, one क्या है? related to official duty, another related to the private interest. Private interest could be related to financial obligation or providing a undue advantage to the family or friends, और common example of conflict of interest आ जाता है इस तरह का, जो majority अभी जो honest officer अभी हमें दिखाई देंगे आने वाले टाइम में, आप जैसे लोग, तो वो क्या है? उस तरह से हमें ज़्यादा दिखाई देंगे, conflict interest तब बहुत ज़्यादा हुआ करेंगे। That's how we have done fully, we have covered this whole chapter।
इन 2017 ये भी क्वेश्चन हमने करा हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स अ कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। एनालाइज करेंगे इसमें आप, जैसे सीएसआर फंडिंग इज लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ऊपर देखा था। फॉर अ बिजनेस मॉडल क्या करता है, हेल्प अ कंपनी बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ। तो इससे क्या हुआ, स्टेक होल्डर्स इन द पब्लिक बाय प्रैक्टिसिंग, इस तरह की प्रैक्टिस करने से हमारा क्या होता है, हमारा होता क्या, द काइंड ऑफ इंपैक्ट दे आर हैविंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट। ऑल्दो ये क्या है, पॉजिटिव मॉडल है विच इज फॉलोड बाय, बट मेनी टाइम्स सीएसआर इज नथिंग मोर देन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पब्लिसिटी। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी अपना पब्लिसिटी स्टंट करती है। एज अ फर्म इट ट्राइज टू लुक गुड थ्रू अ वेरियस एनवायरमेंटली और सोशली फ्रेंडली इनिशिएटिव। एज अ फर्म क्या है, पहले तो वो बहुत सारा एनवायरमेंट को खराब करिए, लेटर ऑन इतना सा 2% ऑफ सीएसआर फंडिंग को देकर क्या करिए, हाँ मैं देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम, दैट्स व्हाट। तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज वायलेटेड इन सच डूबियस अटेम्प्ट बाय कंपनीज। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव डन फुल्ली। ये भी हमने क्वेश्चन करा हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कर रखा है ये। ओके, 2020 में क्वेश्चन पूछा था एक, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड रूल। लॉ और रूल का मतलब क्या है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज लॉ, कि लॉ होता क्या है, और रूल। अगर इसके डिफरेंसेस पता है इजीली आप कर सकते हो। लॉ क्या है, लॉ आर द इनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। लॉ क्या है, दीज आर द इनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, दे आर प्रिस्क्रिप्शंस एंड प्रोहिबिशन, दे हैव सेंसिटिविटी एंड सपोर्ट ऑफ द स्टेट। इनके पास में सपोर्ट ऑफ द स्टेट होता है। एंड इन मॉडर्न टाइम हम बोल सकते हैं इट इज हेल्ड दैट लॉ मस्ट बी पास्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड बॉडी। लॉ कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। जीएसटी में हमने पढ़ा है लॉ क्या है, दे आर रिजिड इन नेचर एंड देयर वायलेशन में अट्रैक्ट पनिशमेंट फ्रॉम द स्टेट। लॉ बाय नेचर आर इनकम्प्लीट एंड दे हैव, लॉ बाय नेचर कैसे होती है, इनकम्प्लीट एंड दे आर जनरली फॉर्म्ड इन रेस्पॉन्स टू द सर्टेन सिचुएशन और इवेंट। लॉ आर मेड टू रेगुलेट द एक्शन एंड द इंडिविजुअल, हम बोल सकते हैं। कंटेक्स्ट में हम कैसे बोलेंगे, कंटेक्स्ट स्पेसिफाई हो करते हैं वो, एंड दे गाइड द डिसीजन एंड द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो हमने लॉ को क्या बोला, दे आर सेट ऑफ रूल्स। लॉ क्या है, सेट ऑफ डूज एंड डोंट, बेसिकली सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स हो गए। और ये क्या, इंपोज बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी इसको इंपोज करती है, 3 हो गए इसके फैक्टर। अगला क्या है, क्राइसिस एन एलिमेंट ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी होती है इस पे, क्राइसिस एन एलिमेंट ऑफ पेनल्टी। तो हमने इस तरह से बता दिया। अब रूल क्या होते हैं, रूल्स आर व्हाट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। रूल क्या है, दे आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ डूज नहीं है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट हम बोलेंगे रूल्स कैन बी मेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी कंपनी है तो मैंने अपने रूल्स बनाए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने रूल बना रही है। तो इसमें हमने क्या, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं डिपेंड ऑन व्हाट, रूल फ्रेमिंग अथॉरिटी। रूल फ्रेमिंग अथॉरिटी एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रूल डिफर। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ एप्लीकेशन का रूल क्या करता है, डिफर करता है। नेक्स्ट ट्रैफिक का एग्जांपल हम बोल सकते हैं ट्रैफिक रूल्स और वेस्ट मैनेजमेंट रूल, व्हाइल द रूल फ्रेम्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था, रूल्स कैन बी फ्रेम्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट लाइक रूल्स फॉर अ हाउस। एक घर में पेरेंट्स के रूल अलग हो सकते हैं, दूसरे घर में पेरेंट्स के रूल अलग हो सकते हैं। तो रूल्स आर ऑल्सो फ्रेम्ड इन टू इलैबोरेट प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउ अ लॉ एंड रेगुलेशन विल ट्रांसलेट इनटू एक्शन। तो इस तरह से हम अंदर लास्ट में बोलेंगे कि लॉ, रूल्स and regulation are codified and written, so they also limit the discretion of those who hold power to implement them. Further हम लिखेंगे, further law and rules or regulation can have a reformative role. कैसा वे फॉरवर्ड में reformative role हो सकता है, which tend to set aside regressive customs and promote ethical standard. एग्जाम्पल डालेंगे इसमें, लॉ बैनिंग चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर एटसेट्रा। आगे हम बोलेंगे तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं इजीली। तो हमने पहले बताया कि लॉ क्या है, रूल क्या है, डिफाइन किया किसके बेसिस पे, ये सेट्स हैं डूज एंड डोंट्स के, ये डोंट्स के, और ये डिफर करते हैं। वैल्यूज हैं इनकी, न्यूट्रलिटी, इनका मतलब एक फैमिली में डिफरेंट रूल हो सकते हैं, कंपनी में डिफरेंट है, गवर्नमेंट की डिफरेंट रूल है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी हैव डन, वी हैव कवर्ड दिस होल टॉपिक। व्हाट वाज दैट, इट वाज आवर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू फॉर नाउ, स्टे हेल्दी, कीप ईटिंग हेल्दी फूड एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।